ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ସ୍କିପ୍ କଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିସ୍ କରିଯିବେ। ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଜବାବ ରଖିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଏହି ପଦରେ ରହିବା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସତ୍ୟବାଦ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିନ୍ଦମ ସିହ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମୃଗାଙ୍କ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉମାଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 5କୁ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ 2022 ଏପ୍ରିଲ 13ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ବା 62 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ 62 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରିଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ 62 ବର୍ଷ ପୂରି ସାରିଛି ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ଆଉ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବାକୁ ନୂତନ ଅଭିଯାନ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଦର୍ଶ କରାଯିବ। 5 ବର୍ଷ ଲାଗି 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଟ୍ରାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିନେନି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ, ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା। 6 ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବଢ଼ିଲା ତାରିଫ, ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟରେ 10ରୁ 12% ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି। ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବେ ତାରିଫ। ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ଲେଟର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାହା ପାଖରୁ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ RL ସିଂ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, all heads of department Odisha. Subject ରହିଛି submission of requisition for conduct of combined recruitment examination relating to the recruitment year 2025 for different group B and group C state cadre post or services regarding. Madam sir, in inviting reference on the subject cited above, I am directed to enclose here with the minutes of meeting held under the chairmanship of Honorable Chief Minister communicated by government in GA and PG department Odisha letter number 1316 जोटा पब्लिश होता 13 जनवरी 2025 and to say that the government in the GA and PG department have requested all department to submit requisition for filling of vacancies to the recruitment agency by 31 मार्च 2025 सुधा तांकर रिक्वेशन से माने सबमिट करेंगे। तांकर एतकी वैकेंसीज रही, बहुत परिमाण वैकेंसी आसवाक जाऊँगी। निश्चित भाव यहाँ आप समय नष्ट न करी निश्चित भाव एबे ठारू आपण पाठ पढ़ा उचित एवं निजको प्रिपेयर करने उचित। यार एक डिटेल वीडियो मु आपण मानकु सामने उपस्थापना करी आपण डाउट क्लीयरेंस पाई। आगामी न्यूज रही, नूतन शिक्षा नीति संक्रांत 3 दिनिया जातीय कर्मशाला उद्घाटित, सुदृढ़ हेब प्राथमिक शिक्षा बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री। पाठ्यक्रम रे स्थान पाइब ओडिशार गौरवमय इतिहास, ऐतिह्य और बरपुत्रंकर गाथा बोली कहिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आगामी न्यूज रही, OSSC शिक्षागत योग्यता मानदंड को नहीं विवाद, हिंदी पढ़ाइबे इंजीनियर, स्नातक हिंदी नथिले भी होई परिबे शिक्षक। आगामी न्यूज रही, बढ़िला मध्याह्न भोजन पाचिका पारिश्रमिक। प्रधानमंत्री जो पोषण PM पोषण योजना रे मध्याह्न भोजन पाई कार्य करुवा पाचक पाचिका मासिक पारिश्रमिक वृद्धि होईछि। मासिक पारिश्रमिक 2,000 टंकारु 3,000 टंका को वृद्धि करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एने आज मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती PM पोषण योजना रे राज्य रे नियोजित 1,12,090 मध्याह्न भोजन पाचक पाचिका उपकृत हेबे। एथिपाई राज्य सरकार 112 कोटी 9 लाख टंका व्यय करिवे।
करेंगे। सूचनायोग्य यही पाचक पाचिका माने प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत राज्यर 50,618 प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 42.45 लाख छात्र छात्री को रंधा खाद्य परिवेषण करुछंती। आगामी न्यूज रही ओडिशा पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर कटक तरफ गोटे विज्ञप्ति जारी होती टू द आईजी ऑफ पुलिस एनआर संबलपुर, द आईजी ऑफ पुलिस ईआर बालेश्वर, द आईजी ऑफ पुलिस एसआर बरहमपुर, द डीआईजी ऑफ पुलिस एसडब्ल्यूआर कोरापुट। सब्जेक्ट रही रिक्रुटमेंट फॉर ड्राइवर्स फॉर पुलिस। बहुत जल्दी ड्राइवर पदवी जो जगार वैकेंसीज अच्छी सबू जगह पूरण होगा जाऊँगी। आशा करी आपण मैंने भी निजक प्रिपेयर करेंगे। यार गोटे डिटेल वीडियो मु आपण मानकु उपस्थापना करी। आगामी न्यूज रही मार्च 1 रु आरटीई नाम लेखा प्रक्रिया 20 मार्च जाए पंजीकरण सुजोग 27 लटेरी 29 रु एप्रिल 10 जाए नाम लेखा। आगामी न्यूज रही मार्च 17 रु प्राथमिक छात्र छात्री SA2 मार्च 17 रु 22 तारीख मध्य प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री आसेसमेंट सेमिटिव आसेसमेंट 2 अनुष्ठित हेब। T&SCERT पक्षर प्रश्नपत्र सह उत्तर सीट उत्तर और ओराल प्रश्न प्रस्तुत करी तार सॉफ्ट कॉपी खूब शीघ्र डीपीओ मानकु पठाजिबो। एथिपाई ड्राफ्ट स्टैंडर्ड रीडिंग डॉक्यूमेंट जारी करा जाइछि। विषय भित्तिक और श्रेणी अनुजाई केते पृष्ठा विशिष्ट प्रश्नपत्र हेब से नहीं ओसेपा पक्षर अवगत करा जाइछि। तेलुगु बंगला उर्दू विषय प्रश्नपत्र सह आदिवासी भाषार प्रश्न मध्य जिला स्तर में प्रस्तुत करा जिवो। प्रश्नपत्र प्रघट किंबा कोनोसी प्रकार बेआईन कार्य केही जदि संपृक्त रुहंती तांको विरोध में कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली ओसेपा राज्य प्रकल्प निर्देशिका अनन्या दास सह समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को कहिसेंती। आगामी न्यूज रही प्राथमिक विद्यालय खोल शिशु वाटिका। शिक्षा वर्षरु पर्यायक्रमे जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू करने को राज्य सरकार योजना प्रस्तुत करिसेंती। प्रथम पर्यायर NEP कार्यकारी और स्थानीय प्रसंगीकरण सह जातीय पाठ्यक्रम रूपरेख ढांचारे पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने को विद्यालय और गणशिक्षा विभाग घोषणा कर सारी। नीति कार्यान्वयन पाई प्रारंभिक पदक्षेपर एक अंश भाव मौलिक साक्षरता और शिक्षाज्ञान को प्राधान्य दे जातीय शिक्षा नीति निर्देशावली सहित समन्वय रखी 2024 सेप्टेम्बर में निपुण ओडिशा योजना कार्य आरंभ होइछे। एथिसह पीएम श्री योजना को कार्यकारी करी राज्यर विद्यालय गुड़ी को NEP कार्यान्वयन पाई आदर्श विद्यालय भावे उन्नीत करुछंती। सेप्टेम्बर 1 रु प्रथम श्रेणी पाई नाम लेखा बयस को संशोधित करी 6 वर्ष और ऊर्ध्व बयस करा जाइछि। NEP अनुजाई 5 वर्ष किंबा ऊर्ध्व बयसर पिलांक प्राक विद्यालय शिक्षा निमंते समस्त प्राथमिक विद्यालय रे शिशु वाटिका खोलिबा नहीं आज विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। 2025-26 शिक्षा वर्षरु पर्यायक्रमे राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखर संशोधन आरंभ हेब। प्रथम पर्यायर जातीय पाठ्यक्रम रूपरेख ढांचारे राज्य प्रसंगीकरण सह प्रारंभिक पर्याय को ग्रहण करा जिवो। शिशुर प्रथम 15 वर्ष शिक्षा 3 रु 18 बयस पर्यायक्रमे 5+3+3+4 भित्तिरे परिवर्तित हेब। प्रारंभिक पर्याय 2 भाग यथा 3 वर्ष अंगनवाड़ी 2 वर्ष प्राथमिक विद्यालय रे प्रथम और द्वितीय श्रेणी 3 वर्ष बयस 8 वर्ष प्रस्तुति पर्याय 3 वर्ष अर्थात तृतीय श्रेणी पंचम श्रेणी 8 रु 11 वर्ष मध्य पर्याय 3 वर्ष अर्थात षष्ठ रु अष्टम श्रेणी 11 रु 14 वर्ष बयस माध्यमिक पर्याय 4 वर्ष अर्थात नवम रु द्वादश श्रेणी 14 रु 18 वर्ष बयस रहिबो। एबे प्रारंभिक पर्याय परिवर्तन उपरे ध्यान दिया जिवो। परवर्ती पर्यायर प्रस्तुति मध्य पर्याय पाई काम आरंभ हेबो। इतिमध्यरे उन्नयन कमिशनर तथा अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठन करा जाइछि जहाँकि NEP कार्यकारी करने दिगरे परामर्श देइथिला। एवं गठन होइथिबा राज्य स्टीयरिंग कमिटी जातीय पाठ्यक्रम रूपरेख अनुसार राज्य पाठ्यक्रम रूपरेख प्रस्तुत करिवो। NEP नहीं मंगलवार ठू एक 3 दिनिया जातीय कर्मशाला आयोजित होबाकू जाउछि, जेउथिरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्र मंत्री शिक्षा
केन्द्रर शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख जोगदेवार कार्यक्रम रही राज्यर शिक्षा गोष्ठी को सचेतन सह ओडिशारे एनईपी पर्यायक्रमे कार्यकारिता पाई रोड मैप प्रस्तुत कर एनईपी 2020 सुगमता समानता गुणात्मक शिक्षा और दायित्वबोध स्तंभ आधार में धंदामूलक दक्षता मातृभाषा शिक्षा डिजिटाल शिक्षा शिशुर सामग्रिक विकास दक्षता आधारित मूल्यांकन मौलिक साक्षरता और संख्याज्ञान दक्षता हासिल करने सहायक हेबो। जेतकी तथ्य थिला आपण मानक सहित संपूर्ण भाव डिस्कसन कर यह पर भी जदि डाउट होउछि ताहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो निहाती भावे मु तुम मानक तुम मानकर जो भी डाउट रही क्लीयर करदेवी। आशा करी वीडियो समस्त को भल लगी जदि भल लगी निश्चित भाव वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान मध्य शेयर करने को कदापि भूलें। ये वीडियो को एंड करवा। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस।